سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ محکمہ مالیات حکومت سندھ کی نااہلی کے باعث بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مالی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ گزر جانے کے باوجود ADP فنڈ کی اقساط جاری نہیں ہو سکی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کو بھی بتائیں کہ محکمہ مالیات حکومت سندھ کی نااہلی کے باعث بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مالی مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے رضوان احمد سے۔ رضوان بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے فائنانس ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کی جانب سے جو ADP ہے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، اس کی 3 اقساط میں جو ہے وہ فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ترقیاتی امور جو ہیں، جو منظور شدہ اسکیمیں ہیں، ان پہ کام کیا جا سکے۔ لیکن رواں مالی سال کے بجٹ میں جو حکومت سندھ ہے اس کی جانب سے 6 ارب 76 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے لیے مختص کی گئی تھی، جس کی پہلا کوارٹر جو ہے وہ ادائیگی نہیں ہو سکی ہے۔ 5 ماہ گزر چکے ہیں، منتخب بلدیاتی نظام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے KMC کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے، اور اس بحران کے نتیجے میں شہر میں جو ترقیاتی کام شروع کیے جانے تھے، جو کہ منظور شدہ اسکیمیں تھیں، زیرو کی اسکیمیں اور آن گوئنگ پروجیکٹس، ان پر جو ہے وہ زیرو کی اسکیموں پر کام شروع نہیں ہو سکا ہے، جبکہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہے ان میں بھی جو ہے متعدد تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ADP فنڈ کی جو اقساط ہیں وہ فوری طور پر جاری کی جائیں تاکہ شہر میں تعمیر و ترقی کے عمل کو نہ صرف یہ کہ مکمل کیا جا سکے بلکہ نئی اسکیموں پر بھی کام شروع کر کے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ جی اچھا رضوان، یہ بتائیے گا کہ 5 ماہ گزر چکے ہیں تو ابھی تک فنڈز جاری کیوں نہیں کیے گئے؟ کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے 3 اقساط میں یہ فنڈنگ ہوتی ہے ADP کی، جس میں ہر 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ قسط فراہم کی جاتی ہے، لیکن 5 ماہ گزر چکے ہیں رواں مالی سال کے اور اس میں قسط جاری نہیں کی گئی ہے۔ جو محکمہ فائنانس ہے اس کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ افسران کی اکھاڑ پچھاڑ بھی اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، جبکہ جو دیگر اسکیمیں ہیں ان کے لیے فنڈز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے فنڈز کی قلت ہے، اس شارٹ فال کے نتیجے میں اس کا خمیازہ KMC کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ جی اچھا رضوان، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فنڈز باقی جگہوں پر دے دیے گئے، باقی اداروں میں دے دیے گئے، محکمہ فائنانس کی جانب سے کیا کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کب تک فنڈز دے دیے جائیں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو KMC کا جو محکمہ ہے فائنانس کا، وہ مسلسل رابطے میں ہے سندھ گورنمنٹ کے محکمہ فائنانس سے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تسلی بخش جواب جو ہے مالیات کی جانب سے، صوبائی محکمہ مالیات کی جانب سے نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بے یقینی کی فضا برقرار ہے، اور اس سلسلے میں اب تک حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان فنڈز کو کب ریلیز کیا جائے گا۔ جی اچھا رضوان، یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس کی وجہ سے کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو رکے ہوئے ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم چیز جو ہے شہر میں ہریالی کا فروغ ہے۔ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں شہر میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ شجرکاری اور اس کے علاوہ پارکوں کی تعمیر کے جو وہ منصوبے ہیں وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ میئر کراچی نے بطور ایڈمنسٹریٹر بھی اس سلسلے میں بہت کام کیا تھا اور متعدد جو ہے وہ پارکوں کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جو ہے احکامات بھی جاری کیے تھے۔ ADP فنڈ کے ذریعے جو ہے ان تمام امور کو انجام کیا جانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو شہر کے بڑے نالے ہیں، وہ برساتی نالے ہوں یا سیوریج نالے ہوں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بھی کچھ منصوبوں پر کام جاری ہے اور کچھ پر جو ہے نئے سرے سے کام شروع کیا جانا ہے، لیکن فنڈ کی قلت کے نتیجے میں یہ منصوبے جو ہے وہ یا تو شروع ہی نہیں کیے جا سکے ہیں یا پھر تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر اور اس کے علاوہ دیگر جو بلدیاتی خدمات ہیں اس حوالے سے متعدد جو منصوبے ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں ADP فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے۔ جی اچھا رضوان، یہ بھی بتائیے گا کہ KMC کی جانب سے مزید اور کیا مطالبات رکھے گئے ہیں؟ کیا کہا گیا ان کی جانب سے کہ فنڈز جلدی دیے جائیں ہمیں، اور کتنا وقت انہوں نے کہا کہ اتنے وقت میں ہمیں یہ فنڈز لازمی چاہیے؟ دیکھیے فنڈ کی بر وقت ادائیگی نہ ہونے سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ آن لائن جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ آن گوئنگ پروجیکٹس کی جو ہے وہ کام رک جانے کے نتیجے میں جتنا کام ہوا ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو منصوبوں کی جو لاگت ہے اس لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مہنگائی کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے اور تاخیر کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ان کی لاگت بڑھتی ہے بلکہ شہریوں کی مشکلات بھی جو ہے
वो तूल पकड़ती हैं। जी रिजवान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आबासी शहीद अस्पताल में UNHCR के तहत ट्रॉमा सेंटर की तज़ीन और आरइश का काम जारी है। अस्पताल के DMS मोहम्मद अली ने तामीराती काम दिसंबर तक मुकम्मल होने का इंदिया दे दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आबासी शहीद अस्पताल में। बल्दिया उस्मा कराची के मातहत चलने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर हम देख रहे थे कि UNHCR के तहत जो है एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था जिसमें सर्जिकल यूनिट, OT और दीगर जो है थिएटर्स बनाए जा रहे थे, लेकिन वो काम रुक गया था। लेकिन अब जो है वो दोबारा से काम उसका जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन ने गुलफाम आपको दिखा सके तो जो है रेनोवेशन का सिलसिला जो है वो जारी है यहाँ पर। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर, OT का वार्ड और दीगर सर्जिकल जो थिएटर्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ आबासी शहीद अस्पताल के DMS अली अब्बास मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, काम रुक गया था, अब दोबारा से इस काम का आगाज़ हुआ है, कौन कौन से वार्ड्स बनाए जाएंगे और कब तक जो है कि काम मुकम्मल हो जाएगा? ये हमारा प्रोजेक्ट तकरीबन 3 मार्च से स्टार्ट हुआ था और इसे दिसंबर तक जो है कंप्लीट होना था। तो सिलसिला ये रहा कि 2-3 महीने तो इस पर काम होता रहा, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली काम रोक दिया गया क्योंकि वजह ये बताई गई हमें कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है इम्पोर्टेड टाइल। तो इम्पोर्टेड टाइल जो है मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी, तो जिसकी वजह से थोड़ा काम डिले हुआ और 1-2 महीना ये बंद रहा है। इसके बाद ये अब माशाल्लाह बिल्कुल अपनी भरपूर तवानाई के साथ दोबारा स्टार्ट हो गया है और ये इंशाल्लाह दिसंबर तक हमारे हैंड ओवर हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ DMS मौजूद थे, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है काम जारी है और दिसंबर तक जो है ये काम मुकम्मल करने का जो है DMS आपने इंदिया दिया है। साथ साथ यही कहना है कि यहाँ पर OT का थिएटर, सर्जिकल, इसी तरह न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक की जो थिएटर हैं वो यहाँ पर जो है बनाए जा रहे हैं और जल्द जो है काम मुकम्मल होकर दिसंबर तक इसको फुली जो है फर्निश कर दिया जाएगा। जी, इस्तेकाम पार्टी के सिंध के सदर महमूद मौलवी ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान को खुश आइन करार दे दिया। कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार मुंतखब कौमी हुकूमत बनने जा रही है। इंतखाबात के नताइज तमाम पार्टियों को कबूल करने चाहिए। मज़ीद जानते हैं अयास राना से। जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर जो है वो 8 फरवरी की तारीख आ चुकी है। जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जहां एक इबाम था वो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब सियासी जमातें उसको कैसा देख रही हैं, इस वक्त मेरे साथ कराची के सदर इस्तेकाम पार्टी के मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, उन्हीं से जानते हैं। महमूद साहब, तारीख आ गई है, क्या तैयारियाँ हैं कराची में, आप लोग कितना समझते हैं और कैसा मोमेंटम नज़र आ रहा है आपको इलेक्शंस का? ये बड़ी खुशाइन बात है कि कम से कम इलेक्शन कमिश्नर ने डेट दे दिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर कोई ऑब्जेक्शंस और कुछ नहीं आया तो 8 फरवरी को होगा और मेरे ख्याल से सारी पार्टियां तैयार हैं। बदकिस्मती ये है कि हर पार्टी कह रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। तो मेरा सवाल बाकी लोगों से भी, कल भी एक जगह बैठे थे, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल किसको रहा है? PMLN भी कह रही है हमें नहीं मिल रहा है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है हमें नहीं मिल रहा है, जो पार्टी PTI भी कह रही है हमें नहीं मिल रहा है। देखिए, इलेक्शंस होने के बाद होना ये चाहिए कि जो भी हारे या जीते उसको लोग एक्सेप्ट करें और उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सेप्ट करें। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और फिर धरना और ये सब शुरू होगा तो ये मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन होगा और नुकसानात जो है अवाम को होंगे। देखिए, जो मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये पहली बार होगा कि इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। जैसे कि महमूद साहब ने एक कहना है कि इस वक्त हल्का बंदियाँ भी कंप्लीट की, 30 नवंबर तक की तारीख है, उसके अंदर उसको होना चाहिए। और उन्होंने एक बड़ा जो है एक दावा किया कि कौन सी ऐसी जमात है जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तमाम पार्टीज एक ही दावा कर रही हैं और इस दफ़ा के इलेक्शन जीतने के बाद जो है लगता है इनको यही है कि एक नेशनल इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने जा रही है। जी नाज़रीन, शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है और सुबह के औकात में कराची का शुमार आलूदा तरीन शहरों में तीसरे और चौथे नंबर पर आता है। आपको बताएं कि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है और अगर सुबह के औकात की बात करें तो सुबह के औकात में कराची का शुमार आलूदा तरीन शहरों में तीसरे या चौथे नंबर पर आता है और फ़ज़ाई आलूदगी का राज शहर कायद में बरकरार है। शहरियों के लिए गैर सेहत बख्श है और एयर क्वालिटी इंडेक्स फ़ज़ा में बढ़ती आलूदगी की वजह शहर में दरख्तों और हरियाली का कम होना भी है। क्या तफसीलातें जानेंगे हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा, शहर कायद में फ़ज़ाई आलूदगी का राज ताहाल बरकरार है?
जी बिल्कुल, शहर कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे मादे जो है वो हमारी फ़िज़ा में शामिल हो रहे हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। बात करें शहर कराची पाकिस्तान के कौन से आलूदा तरीन शहरों में, तो सरफ़हरिस्त आज भी इसका नंबर है और सुबह के औकात में चौथे नंबर पर था और अब जो है वो 5वें नंबर पर आ गया है। मुल्क की अगर बात करें तो मुल्क तीसरे नंबर पर है। इसी तरह जो है टॉप 10 में जो है कराची जो है वो आलूदा तरीन शहरों में आता है। और अगर बात करें कि जो फ़िज़ा में आलूदगी के ज़र्रात हैं तो वो 192 पार्टिकुलेट मीटर हैं। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूँ जहाँ आपको तरक्याती काम होता नज़र आ रहा है। फ़िज़ा में बढ़ती आलूदगी की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलता जहरीला धुआं और इंडस्ट्रियल एरिया से निकलता हुआ धुआं और जो यहाँ पर तरक्याती काम होता है तो वो भी फ़िज़ा में आलूदगी का सबब बनता है। हम बात करते हैं अगर यहाँ पर शहर कराची में क्यों फ़िज़ा में आलूदगी इतनी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहर में जंगलात की कमी और शहर में आबादी का बढ़ना, हरियाली और दरख्तों का ख़त्म होना जो है वो एक बड़ी वजह है। मेरे कैमरामैन भी इस वक्त आपको दिखाएं कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये एक ग्रीन बेल्ट थी यहाँ पर, लेकिन अब जो है यहाँ पर BRT का काम शुरू कर दिया गया है। अगर बात करें फ़िज़ा में आलूदगी के क्या नुकसानात होते हैं तो जल्दी अमराज और TB सबसे पहले जो है वो लोग जो है इसका शिकार होते हैं। लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि जैसे इसकी मिकदार में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, इसके मीटर रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये सिर्फ जल्दी अमराज की नहीं बल्कि लोगों को जो है वो दिमागी दफाई के तौर पर भी जो है वो अफेक्ट कर रही है। और दूसरे अमराज भी जो है वो हम देख रहे हैं कि रोज़ ब रोज़ जो है वो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जो हमारी ज़िंदगी पे जो है वो मुनफी किरदार अदा करती हैं। शहर कराची वैसे तो कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन जो है फ़िज़ा में बढ़ती आलूदगी जो है वो शहर में जो है वो बीमारियां पैदा कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शहरी अपनी बचत के लिए जो है जो गाड़ियों से जहरीला धुआं निकलता है उससे मास्क भी लगा सकते हैं और अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं। जी अच्छा, अक्सर बताइएगा कि हर साल जब भी सर्दियां आती हैं तो हम ये देखते हैं कि स्मोक जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके लिए कोई ठोस इक़दाम क्यों नहीं किए जाते और क्या इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर भी अब तक बताई गई हैं? जी बिल्कुल, यही महकमा मौसमियात के जानिब से जो है वो अब तक इस पे कोई इक़दामात नहीं लिए गए हैं। सर्दियों में हम देखते हैं कि हवा में खुनकी भी जो है वो बढ़ जाती है दिन और शाम के औकात में हम देखते हैं कि ज़्यादा होती है और ये जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो हमारी जो ज़िंदगियों पे जो है वो असर कर रही होती है। हर साल जो है एक सर्वे के मुताबिक जो है रिसर्च के मुताबिक ये जाना जाता है कि दुनिया भर में सालाना अमवात जो है सबसे ज़्यादा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं और 3 मिलियन तक जो है वो अब इसकी शरह जो है वो जा चुकी है। लेकिन शहर कराची इसमें अगर बात करें तो तीसरे या चौथे और 5वें नंबर पे जो है आ रहा होता है, टॉप 10 में आ रहा होता है। सरफ़हरिस्त इसकी लिस्ट होती है शहर कराची की, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है अब तक इस पर कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। जी अच्छा, अक्सर ये बहुत अलार्मिंग बात है कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में जो है कराची का शुमार भी होता है और तीसरे या चौथे नंबर पर भी आता है। क्या कोई बारिश की पेशगोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से कि जिसके बाद स्मोक में कमी आएगी? और ये मेरा सवाल है कि क्या इस पर अब तक इक़दाम नहीं किए गए और अगर नहीं किए गए तो इसकी क्या वजूहात बताई जाती हैं? क्योंकि हर साल हम ये देखते हैं कि सर्दियाँ जब भी आती हैं स्मोक में इजाफा हो जाता है, तो पहले से इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं इख्तियार की जाती हैं? जी बिल्कुल, यकीनन हाँ, शहर कराची में जो है वो इंतज़ामिया जो है वो हमें गफलत का शिकार दिखाई देती है। शहर कराची जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है वो गुजर रहे होते हैं। बारिशें जब आती है तो हम देखते हैं कि उस पर भी जो है वो सड़कों का हाल किस तरह का हो जाता है, पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है, जिससे जो हमारे पौधे होते हैं, हमारी हरियाली होती है, उनको भी जो है नुकसान पहुँचता है। उसकी वजह से भी जो है वो दीगर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। फ़िज़ा में जो है वो आलूदगी फैलती है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ने लगती है उससे, और जो बाहर जाते हुए शहरी हैं ख़ास तौर पे उनको इस चीज़ की मुश्किलात का बड़ा सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से हम देखते हैं कि कोई भी ऐसे ठोस इंतज़ामात नहीं किए जाते हैं कि बारिश आए तो उसके लिए जो है कोई ऐसा इक़दाम किया जाए, या फिर जो है सर्दी आए तो उससे निमटने के लिए हम कोई अपने माहौल को बेहतर करने के लिए कोई ऐसा इंतज़ाम कर सकें। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर तरक्याती काम जारी है, तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, फ़िज़ा में आलूदगी बढ़ रही है, गर्मी है, जिसकी वजह से जो है वो जल्दी अमराज जो है ख़ास तौर पर ज़्यादा फैलते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का तीसरा या चौथा नंबर आता है।
GBSS मलीर स्कूल के तलबा क्लाइमेट मुतासर होने की वजूहात पर प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। तलबा ने कहा कि लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि शहर में आलूदगी कम करके माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज से। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त GBSS BMB मलीर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के जो है वो तलबा मौजूद है, जिन्होंने आजकल के जो माहौल को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह से माहौलियाती आलूदगी फैल रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस हवाले से इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाया भी सकते हैं कि इस मॉडल में उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर आज के जो है वो दौर के माहौल के हवाले से यहाँ पर ये मॉडल तैयार किया है, जिसमें जो है उन्होंने फॉरेस्टेशन और उसके साथ साथ जो है वो ओजोन लेयर को डिस्क्राइब किया है। इनसे बात करते हैं। जी, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का मेन मकसद ये है कि हमारे ज़मीन और आसमान के बीच में एक लेयर दी गई है जिसको हम ओजोन लेयर कहते हैं। उसके डैमेज होने की वजह से सूरज की किरणें हमारे ज़मीन पर पड़ रही हैं। ज़मीन पर पड़ने की वजह से हमारे ये ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब कुछ साल पहले देखेंगे हमारे जो कराची और यहाँ पाकिस्तान का मौसम जो था, अब वो हमारी बेहतरीन रहती थी। अब दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। अब सर्दियों के महीनों में भी गर्मी शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि तो हमारे ओजोन की लेयर डैमेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने सुना इन तलबा का यही कहना है कि आज के जो दौर में माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, जिस वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो मेल्ट होती जा रही है दिन ब दिन। तो उस वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिनका मकसद ये था कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह से वो फैक्ट्रीज़ को जो है वो आबादी से दूर रख कर जो है वो काम किया जाए। दूसरी जानिब वो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ जिन पर जो है वो जो पॉल्यूशन एयर जो है वो ना इस्तेमाल में हो सकी हो। इसके साथ साथ इनका यही कहना है कि इसके थ्रू जो है वो ये लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है दिन ब दिन। जी, कराची में फ़िज़ा का मयार इंतहाई ख़राब है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे, जबकि पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। हवा में आलूदगी की शरह 192 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की जा रही है। मज़ीद बता रही हैं आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में आलूदगी का राज बरकरार है। शहर में जो है समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल ना होने के बायस जो है वो हवा में आलूदगी की शरह में खासा इजाफा दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची जो है वो आज तीसरे नंबर पर मौजूद है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यासिर हुसैन माहिर माहौलियात मौजूद हैं। सर बताइएगा कि क्या वजह है शहर कायद में इतनी आलूदगी बढ़ी? जैसे हम देख रहे हैं कि लाहौर जो है वो दुनिया के टॉप पे है आलूदगी के मामले में, इसी तरह से कराची भी जो है वो टॉप 10 की लिस्ट से नीचे ही नहीं आ रहा है। तो इसकी क्या वजह है? हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और एयर पोल्यूशन में भी सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक का एग्जॉस्ट होता है, जिसमें से जहरीली गैसें भी निकलती हैं और ज़र्रात। सबसे ज़्यादा जो सेहत पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है वो ज़र्रात का पड़ता है, जो PM 2.5 हम कहते हैं। और जिस तरह टेम्परेचर थर्मामीटर से टेम्परेचर लिया जाता है, उसी तरह PM 2.5 आपका मेजरमेंट है, नंबर एक आ जाता है कि आपकी हवा कितनी आलूदा है। उसमें कराची और लाहौर जो है अब दुनिया के सबसे आप कह लें कि आलूदा तरीन शहरों में से हैं। और उसकी कराची में वजह यह है कि जो समंदरी हवा गर्मियों में आती है अब वो रुक गई है, और दूसरी तरफ से अब हवा आनी शुरू होगी, तो वो सर्दियों वाली हवा होती है जो पूरी सर्दियों चलेगी। हवाई आलूदगी जो है ना सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। आप यूँ समझें कि आप शहर में रह रहे हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती सबको सिगरेट पिलाई जा रही हो ना। तो ये वही बिल्कुल हेल्थ के लिहाज से इसकी वही प्रिकॉशंस हैं। तो इससे बचने के लिए एक तो ये कि सबसे पहले तो ये कि जो जहाँ से ये धुआं और ये सारे जहरीले जो मादे हैं जो हवा में आ जाते हैं, इनकी सोर्स को रोका जाए। यानी कि आप पेट्रोल को तर्क करें आहिस्ता आहिस्ता, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की तरफ फ़ौरन आए। कि अपने आप को बचाने के लिए आप मास्क पहनें, और अच्छे से अच्छा मास्क पहनें, चाहे आप मेडिकल वाला मास्क पहन रहे हों या सिर्फ कपड़ा भी लपेट लें। लेकिन अगर आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं या गुज़रते हैं या बाइक चलाते हैं या आपकी दुकान है, आपको मास्क तो ज़रूरी पहनना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, यासिर हुसैन माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थे, और माहिरीन भी जो है वो शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। जी, महकमे औकाफ भी करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने लगा। निगरान हुकूमत ने मज़ारों और दरगाहों के नाम पर करोड़ों की करप्शन नाकाम बना दी। निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ ने सिपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,74,50,000 का टेंडर मनसूख करने का हुक्म दे दिया है।
निगरां हुकूमत ने मजदूरों, मज़ारों और दरगाहों के नाम पर करोड़ों की करप्शन नाकाम बना दी है। आपको बताएं कि निगरां हुकूमत ने मज़ारों और दरगाहों के नाम पर करोड़ों की करप्शन नाकाम की है। निगरां सूबाई वज़ीर औकाफ ने सिपरा कानून की खिलाफ वर्जी पर 1,74,50,000 का टेंडर मनसूख करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नहुड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ सिंध में 14 ऐसी मज़ारत और दरगाह हैं जिसका टेंडर जो है महकमा औकाफ की जानब से किया गया था। इस पर 1,74,50,000 रुपये का, जिस पर निगरान वज़ीर औकाफ हैं उमर सुमरो, उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर सिपरा के अफसरान को तलब किया। जिसके बाद इस जो है टेंडर पर तफसीली तौर पर बातचीत की गई। इसके सिपरा जो रूल्स हैं, सिंध प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी रूल्स का जायज़ा लिया गया, जिसके बाद में इन्होंने जो इस टेंडर को सिपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करार देकर फौरी तौर पर मनसूख करने के अहकाम जारी किए। जिसके बाद महकमा औकाफ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर सिपरा को तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। जिसके बाद में सिपरा ने जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस टेंडर को मनसूख करके अपने वेबसाइट पर भी आवीज़ा कर दिया। ये टेंडर है जो सिपरा ने मनसूख किया है। इसके अलावा जो दरगाहें थी, इनमें इस हवाले से जो मज़ार 14 हैं जिनके टेंडर मनसूख किए, जिसमें ख़ास तौर पर जिन पर अखराज करने थे, उनमें बिरयानी की फराहमी, गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराया, इसके अलावा पेनाफ्लेक्स और बैनर्स की छपाई के अखराजात भी शामिल थे, वॉक थ्रू गेट के अखराजात, स्टेशनरी, इसके अलावा दीगर जो प्रिंटिंग का जो मामला वो भी इसमें शामिल था। इन दरगाहों में दरगाह अब्दुल वहाब शाह जिलानी, दरगाह समन सरकार, दरगाह आलम शाह बुखारी, दरगाह मासूम शाह मीनारा, दरगाह सखी सुल्तान शाह, दरगाह शाह यकीक, इसके अलावा दरगाह मोहम्मद शाह डोला, दरगाह बीबी मीरा पीर, दरगाह इस्माइल शाह और दरगाह सैयद सरमस्त अली सरमस्त शामिल थे। इन 14 दरगाहों का टेंडर जो मनसूख कर दिया गया। अब जो दोबारा इस वाले से टेंडर जारी किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो सिपरा के रूल्स का जायजा लेने के बाद में निगरान वज़ीर ने वाज़ह तौर पर महकमा औकाफ को अहकाम जारी किए कि इस तरह की मुबैना तौर पर करप्शन को रोका जाए। और ये जो बड़ी करप्शन होने जा रही थी, लेकिन निगरान वज़ीर ने जब नोटिस लिया तो इस करप्शन को रोका गया। जो 1,74,50,000 रुपये ज़ाहिर किए गए, लेकिन ये सिर्फ 14 मज़ारत हैं जिनके टेंडर को मनसूख किया गया। इस हवाले से निगरान वज़ीर ने महकमा औकाफ का इसका असर नो जायज़ा लेकर दोबारा जो टेंडर किया जाए, इसमें ख़ास तौर पर जो कोटेशन मंगाया जाए, उस कोटेशन का भी आइनी तरीका जो है सिपरा के रूल्स हैं उनको फॉलो करके कोटेशन लेने के बाद में जो है इनका नया टेंडर किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है सिपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर ये टेंडर मनसूख कर दिया, जो 1,74,50,000 रुपये का था, जो महकमा औकाफ की जानब से जारी किया गया था। जी अच्छा आज़ाद, बताइएगा कि महकमा औकाफ की जानिब से क्या अभी तक इस पर कोई वजाहत दी गई है? जी बिल्कुल, ये महकमा औकाफ के जो निगरान वज़ीर हैं उमर सुमरो, उनकी जानब से इस टेंडर के मामले पर नोटिस लिया गया कि उन्होंने जब इनसे पूछा कि दरगाहों के जो टेंडर्स किए जाते हैं उनका क्या तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने सिपरा से मंजूरी ली और सिपरा की मंजूरी के बाद ये टेंडर किया। लेकिन जब सिपरा के अफसरान को तलब करके इनके तमाम तर जो कोटेशन थे उनका जायज़ा लिया गया, तो इसमें मुबैना तौर पर करप्शन ज़ाहिर की गई, जिसके बायस जो है सिपरा के अफसरान को सख्ती से निगरान वज़ीर ने तंबीह की जब आप लोगों ने इस सिपरा कानून की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन इस टेंडर को मनसूख किया गया, लेकिन किसी अफसर के खिलाफ किसी किस्म की ताल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, नहीं किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने के कोई अहकाम दिए गए। सिर्फ हिदायत की गई है कि इस तरह करप्शन से अफसरान को रोका जाए और असर नो जायज़ा लेकर नया टेंडर जो है वो जारी किया जाए। अच्छा आज़ाद, ये भी बताइएगा कि महकमा औकाफ की जानिब से क्या पहले कभी ऐसी करप्शन सामने आई है माजी में? जी बिल्कुल, महकमा औकाफ में इस बिग करप्शन की जो कहानी ये अरसा दराज से चलती आ रही है, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि महकमा औकाफ ने जो है न टेंडर मनसूख तो किया, लेकिन किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे कबल जो है अलीगुल संजरानी जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे औकाफ के, उनको इसी मामले पर जो है ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन जैसे उनको उस ओहदे से हटाया तो उसको दोबारा जो है वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम के मेंबर के तौर पर तैनात किया गया, लेकिन इसी मामले पर उसको हटाया गया था, जिसके बाद ये टेंडर मनसूख किया गया। लेकिन इस अफसर के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। तो इसकी क्या वजूहत बताई जाती हैं कि जो अफसर इसमें मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर कार्रवाई की जाए तो दोबारा इस तरह के वाकयात पेश ना आए, दोबारा से इस तरह की करप्शन ना हो।
जी बिल्कुल, ये मामला जो है वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम के पास भी गया, एंटी करप्शन के पास भी इसकी तहकीकात इस वक्त जारी है। इस मामले की जो टेंडर गैर कानूनी किए गए हैं या मुख्तलिफ जो रकम की मुंतकली की गई है, रकम की जो अखराजात किए गए इस हवाले से, लेकिन उसके बाद में इन अफसरान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यही वजह है कि मुराद अली शाह सरकार के दौर में जो तैनात अफसरान थे, उन अफसरान के खिलाफ इस वक्त निगरान सरकार जो है ओहदों से तो हटा रही है, लेकिन उस अफसरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। ये 1,74,50,000 का टेंडर जिस पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ अलीगुल संजरानी को ओहदे से हटाया गया, लेकिन उसी दिन जो है उसी शख्स को जो है वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम का मेंबर के तौर पर तैनात किया गया, जो इन इदारों की जो है तहकीकात करती है, लेकिन उस तहकीकाती इदारे में उसको मेंबर तैनात किया गया, लेकिन उसके खिलाफ इस मामले पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ इस टेंडर को मनसूख करने के सिपरा को अहकाम जारी किए और सिपरा ने इस टेंडर को मनसूख कर दिया। जी, निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ ने सिपरा कानून की खिलाफ वर्जी पर 1,74,50,000 का टेंडर मनसूख करने का हुक्म दे दिया है। आज़ाद नूरियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर में चलने वाली मुतादिद ग्रीन बसेस की खुदकार सीढ़ियाँ गैर फाल हैं, जिसके बाइस खुसूसी अफराद और बुजुर्गों को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रही हैं आयमा खान। कराची में शहरियों को सफरी सहूलत फरहाम करने वाली ग्रीन लाइन की एस्केलेटर्स गैर फाल हो गईं। लसबेला, नागन चौरंगी, केडीए समेत कई स्टेशन की खुदकार सीढ़ियाँ नाकारा हो गईं। खुदकार सीढ़ियाँ गैर फाल होने से बुजुर्ग और माजूर अफराद को भी मुश्किलात का सामना है। इसमें ये कहना चाहूँगी इनको खोलना चाहिए, और जो वैसे लोग भी होते हैं कि जिनको तकलीफ़ है, माजूर ही नहीं है, जिनको घुटनों की तकलीफ़ है, मज़ीद और ही होते, बहुत सारी तकलीफ़ होती हैं, तो इनको इस चीज़ को जो है ना सॉल्व करना चाहिए। ये लोग इस चीज़ को सॉल्व नहीं करते हैं, मगर जो चीज़ चल रही है हमारे यहाँ वो चलती ही रहेगी। जो निज़ाम चल रहा है, अगर इन्होंने जो शुरू किया है ना वही चल रहा है, उसको ये कहीं पे भी ना कोई रद्द-बदल इसका नहीं कर रहे हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि सफरी सहूलत के लिए बनाई गई ग्रीन लाइन बस के एस्केलेटर्स को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ आयमा खान, सिटी 21। महंगाई का तूफान एक बार फिर सर उठाने लगा है और शहर में होलसेल की सतह पर दालें 10 से 20 रुपए तक महंगी हो गई हैं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। ग़िज़ाई अजनास की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगीं। दालों की कीमतों ने आसमान की तरफ सफर शुरू कर दिया। होलसेल की सतह पर 1 किलो माश की दाल खरीदनी है तो जेब में 480 रुपए होने चाहिए, क्योंकि माश की दाल 20 रुपए महंगी हो गई है। मूंग की दाल 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। चने की दाल 10 रुपए इजाफे से 195, लाल मसूर 10 रुपए इजाफे से 270 और काला मसूर 20 रुपए इजाफे से 270 रुपए फी किलो पे पहुंच गई है। काबली चना 190 रुपए से बढ़कर 205 रुपए फी किलो और कहीं कहीं इससे जायद कीमत पर फरोख्त होने लगा, जबकि सफेद चना 10 रुपए महंगा होकर 360 रुपए किलो पर पहुंच गया। दुकानदारों की कीमतों में इजाफे की वजह रुपए की बेकदरी को करार देते हैं। भाई ये वजूहत ये है कि पीछे से माल जिनके जो लिए हुए थे, आज वापस डॉलर का रेट थोड़ा बढ़ा है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये भी रेट अप हुए हैं। अच्छा, और बाकी ये कि अच्छा वाला कम हो रहा, तो होते होते गरीबों के दिलों में एक ऐसी खुशी की लहर जागी थी कि भाई हर चीज़ कम हो रही है। दालें जो हैं 10-10, 15-15, 20-20 रुपये वो भी बढ़ गई हैं। ये इसकी वजह क्या है ये भी आपको पता होगा या फिर अल्लाह को पता। बाकी ये चीज़ें देखें जाएँ तो बढ़ना नहीं चाहिए इस टाइम पे। मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेशतर ग़िज़ाई अजनास मुख्तलिफ ममालिक से दरामद की जाती हैं, ताहम डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव मुकामी सतह पर उनकी कीमतों पर असरअंदाज होता है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने आवाम की सहूलत के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवा दी है, जहां शहरी 24 घंटे कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मज़ीद जानते हैं, अभी आपको बताएं कि कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने आवाम की सहूलत के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ करवा दी है, जहां पर शहरी 24 घंटे कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मज़ीद जान लेते हैं DIG ईस्ट के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी बिल्कुल, कराची पुलिस की जानिब से शहरियों और पुलिस के दरमियान दूरियां ख़त्म करने की कोशिशें जो है वो जारी हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ कोशिशें की जाती रही हैं, पहले भी और अब भी जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DIG ईस्ट ऑफिस में, DIG ईस्ट ग़ुलाम असफ़र महेसर के साथ, जिन्होंने एक नई जो है ऐप वो मुतारिफ़ करवाई है, जिसके ज़रिए शहरी जो है अपनी तमाम शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं और फौरी तौर पर जो है उन पर एक्शन भी किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम इनसे मालूम करते हैं कि ये ऐप किस तरह से बनाई गई है, उसमें क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असफर भाई, बताइएगा कि ये जो ऐप आपने बनाई है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए और किस तरह से वो आपसे रब्ता कर सकते हैं?
یہ ایک فورم بنایا گیا بیسیکلی کہ اگر جو بندہ تھانے نہیں جانا چاہتا یا ایس ایس پی کے آفس نہیں جانا چاہتا, ڈی آئی جی کے پاس نہیں جانا چاہتا, وہ گھر بیٹھے اور اپنے کمفرٹ زون سے پولیس کو اپروچ کرے اور پولیس اس پہ انویسٹیگیٹ کرے, انکوائر کرے اور اس کو ان میٹر کو دیکھے. اس سلسلے میں جتنے بھی سوشل میڈیا کے فورمز ہیں جیسے کہ فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے اور ٹویٹر ہے, ان چاروں کے اوپر ہم نے اپنے جو ہے وہ لنکس دے دیے ہیں, اور اگر کوئی بھی اس لنک پہ جا کے کوئی کمپلینٹ درج کرانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ واٹس ایپ کا ایک نمبر, وہاں پہ آپ کو ایک بٹن جو ہے وہ بلنک کر کا وہ نظر آئے گا. آپ جسٹ اس کو ٹچ کریں تو آپ واٹس ایپ میں چلے جاتے ہیں اور آپ اپنا میٹر جو ہے وہ پرائیویٹلی جو ہے وہ ہمیں کنوے کر سکتے ہیں. اس پہ ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 100 تک کی اپلیکیشن اور جو لوگوں نے رجوع کیا ہے, جس میں سے 90% جو ہے وہ ہم نے ریزالو کر دی ہیں. کچھ کی ویریفیکیشن اور جو پروسیس ہے وہ پینڈنگ ہے. تو میں تو ضرور کہوں گا کہ یہ نیا انیشیٹو ہے, لیکن اس سے جتنا بھی مستفید ہوا جائے وہ پبلک کے لیے اور ہمارے لیے وہ بڑا بہتر ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل, بہت اچھی کاوش جو ہے وہ کراچی پولیس اور خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی جانب سے سامنے آئی ہے, اور اب تک جو ڈی آئی جی صاحب کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد کمپلینز آئی ہیں اور اس میں سے 90% جو ہے ان کو ان کے جو مسائل تھے شہریوں کے ان کو حل بھی کیا گیا ہے اور یہ جاری رہے گا. جی پیپلز پارٹی 13 نومبر کو بھرپور پاور شو کا مظاہرہ کرے گی. بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے اور کئی سیاسی شخصیات پیپلز میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گی. تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے عاجز جمالی. عاجز بتائیے گا جلسہ کہاں پر ہوگا؟ جی دیکھیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 نومبر کو دیوالی کے موقع پر تھر میں ایک جلسہ کیا جائے گا مٹھی میں, اور یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا, پاور شو ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بہت اہم شخصیات تھر کی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گی, جن میں پی ٹی آئی کے سابقہ ایم این اے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار, اس کی شمولیت بھی متفق ہے, اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی شخصیات کی پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ ہے. اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ 13 نومبر کے جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے. جی بہت شکریہ عزیز جمالی. گیس قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے. کہتے ہیں پورا دن گیس غائب رہتی ہے مگر بل وقت پر آتا ہے. حکومت قیمتوں میں اضافہ واپس لے. کاوش میں من سے مزید تفصیلات جانیں گے. بالکل دیکھیں, مہنگائی کی سطح عوام پر حکومت نے گیس بم گرا دیا اور اوگرا نے اس کی منظوری دے دی ہے. نان پروڈکٹک صارفین پر 172% تک گیس جو مہنگی کر دی گئی ہے. اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا, گیس تو آتی نہیں ہے, بل پہلے بھی وقت پر آتے تھے, اب زیادہ آئیں گے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سراسر زیادتی اور ظلم ہے عوام کے ساتھ. کئی علاقے ایسے جہاں لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی, اور بہت مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو, کیونکہ جن لوگوں کے یہاں گیس وغیرہ نہیں آتی ہے وہ ایل پی جی کا استعمال کرتے ہیں. ایل پی جی کی بھی قیمت اتنی حد تک پہنچ گئی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ بھائی عوام کو ریلیف دیا جائے اور یہ گیس کے نرخوں کو کم کیا جائے, اتنا نہ بڑھایا جائے, کیونکہ روزگار بھی نہیں ہے ملک میں اور معاشی حالات بھی ایسی ہے اور عوام بہت پریشان ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. یہ میں کہوں گا اسے. بالکل دیکھیں, مہنگائی کے حوالے سے عوام پریشان ہے اور مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں جو حالیہ اضافہ کیا گیا اس کو واپس لیا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. جی کراچی سے غیر ملکی تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. آج ہولڈنگ سینٹر میں موجود 182 تارکین کو بسوں کے ذریعے چمن بارڈر روانہ کیا جا چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ کراچی سے غیر ملکی تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہولڈنگ سینٹر میں موجود 182 تارکین وطن کو بسوں کے ذریعے چمن بارڈر روانہ کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے معراج اختر سے. معراج بتائیے گا کب تک روانہ کیا جائے گا؟ دیکھیے تو کراچی میں مسلسل آپریشن بھی جاری ہے تارکین وطن کے خلاف, اور ان کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. حاجی کیمپ پر جو ان کا ہولڈنگ سینٹر بنا ہوا ہے وہاں سے آج بھی جو ہے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں, اور تقریباً 182 کے قریب افراد ہیں جو کہ ہولڈنگ سینٹر میں موجود ہیں. انہیں آج شام جو ہے روانہ کیا جائے گا چمن بارڈر کے لیے باقاعدہ بسوں کے ذریعے. ہولڈنگ سینٹر میں جو موجود افراد ہیں ان میں 70 مرد ہیں, 33 خواتین اور تقریباً 79 بچے شامل ہیں. اچھا, آج شام تک ان 182 افراد کو 5 بسوں کے ذریعے جو ہے چمن بارڈر روانہ کیا جائے گا. گزشتہ روز ہولڈنگ سینٹر کیمپ سے تقریباً 83 افراد کو چمن بارڈر بھیجا گیا تھا, اور کراچی میں جو ہے 1500 کے قریب افراد ہولڈنگ سینٹر جو ہے مجموعی طور پر لائے گئے تھے. 540 سے زائد افراد کو 7 روز کے دوران ہولڈنگ سینٹر سے چمن بھیجا گیا ہے, اور اب مزید 182 افراد جو ہے وہ آج شام میں روانہ کر دیے جائیں گے. جی بہت شکریہ معراج اختر.
पुराने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स अब तक कितने बाकी? स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ मालियत के पुराने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स के 5 अरब रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड कैश या तब्दील कराने के लिए बाकी हैं। 30 जून 2024 के बाद गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स कैश या तब्दील नहीं हो सकेंगे। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जिस स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई कि गैर रजिस्टर्ड पुराने बड़े साइज के जो प्राइस बॉन्ड है मुख्तलिफ मालियत के, वो अब तक 5 अरब रुपए के वो बाकी हैं, तब्दील या कैश कराए जा सकते हैं, जिससे देखा जाए आखिरी बार तारीख में तौसीक की गई है। और स्टेट बैंक ने जो है 30 जून 2024 तक जो है जो पुराने प्राइस बॉन्ड है गैर रजिस्टर्ड, उसको तब्दील या उसको कैश कराया जा सकता है। पुराने गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड 7,500, 15,000, 25,000, 40,000 रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड है, जिनकी तब्दील होना है। 7,500 रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड अभी भी 1 अरब 52 करोड़ रुपए के बाकी हैं। 15,000 रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड 1 अरब 76 करोड़ रुपए की तब्दील होना बाकी है। और 25,000 रुपए मालियत के गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड अभी भी तकरीबन 79 करोड़ 80 लाख रुपए की तब्दील होना बाकी है। और 40,000 रुपए मालियत के सबसे बड़े साइज की जो गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड है अभी भी 81 करोड़ 70 लाख रुपए तब्दील होना बाकी है। और स्टेट बैंक के मुताबिक ये आखिरी मौका है कि गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड को कैश रजिस्टर करा सकते हैं, जिसमें 30 जून 2024 तक की मोहलत है। उसके बाद ये रद्दी हो गया, इसको कोई तब्दील नहीं होगा और ये सारे पैसे जो है जाया हो जाए। एक बार फिर जो है तंबीह की गई है कि 2024 30 जून तक जो है तमाम जो पुराने बड़े साइज के जो प्राइस बॉन्ड है गैर रजिस्टर्ड, उसको तब्दील करा दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का 146वां यौम पैदाइश आज मुल्क भर में मिली जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हर साल अंदरून और बैरून मुल्क से ज़ायरीन अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश पर आकर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। ऐवानी सनत और तिजारत, ज़िला इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी केक काटने की तकरीब का इनेकाद करती हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह बेदार करने वाले शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। 1899 में MA करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज में शोबा दरसे तदरीस से वाबस्ता हो गए और इस दौरान शायरी भी जारी रखी। हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिदा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। मिल्लत इस्लामिया को लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जैसी अफाकी फिक्रे देने वाले अल्लामा इकबाल ने कानून और फ़लसफ़े में डिग्रियां लीं, लेकिन इन्होंने जज्बात के इजहार के लिए शायरी का सहारा लिया। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 1910 में जर्मनी से वतन वापसी के बाद वकालत के साथ सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू किया और अपनी शायरी के ज़रिए फ़िक्री और सियासी तौर पर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। 1964 को मुस्लिम लीग के मरकज़ी पार्लियामेंट बोर्ड के रुकन बने, ताहम तबीयत ने इनका साथ ना दिया और वो क़याम पाकिस्तान से 9 बरस कबल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत इंटर स्कूल थ्रोबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत जो है इंटर स्कूल टूर्नामेंट में आज फुटसॉल और थ्रोबॉल के मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। जो टोटल 41 स्कूलों की टीमें जो हैं इसमें मद्दे मुकाबले हैं, जबकि थ्रो बॉल में जो है 31 टीमों ने जो है शिरकत की है। हमारे साथ जो है मौजूद है CA मॉडल स्कूल 2 की जो टीम है, जिन्होंने अपना पहला मैच जो है वो विन कर लिया है। नजम स्कूल से हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप कप्तान हैं, पहले तो क्या कहेंगी इस टूर्नामेंट में आप लोगों को मौका फराहम किया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने। आपके कोच हमने देखा काफ़ी जो है आप लोगों को कम कर रहे थे मैच के दौरान, तो क्या कहेंगे जितने की कितनी खुशी आगे अगले राउंड के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे और ऊपर से हमारे कोच ने हमें इतना अप्रिशिएट किया कि हमारे अंदर हिम्मत पैदा हुई और सामने वाली टीम के अंदर थोड़ा सा डराव सा पैदा हुआ। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि हम क्वालिफाई करें और इंशाल्लाह हम ये जीते भी। दूसरी खिलाड़ियों से हम बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, क्या कहेंगे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, बोर्ड ने ये बड़ा मौका, ज़बरदस्त मौका दिया है। लड़कियों को हमने देखा पहले स्पोर्ट्स में कम होती थी, लेकिन अब बढ़ चढ़ के लड़कियां जो आगे आ रही हैं।
جی ہم نے ویسے لڑکیاں اسپورٹس میں کم انٹرسٹیڈ ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ نے ہمارے سر نے جو اسکول میں سر ارشد انہوں نے ہمیں بہت پریکٹس کروائی تھی اسکول میں. ہم نے بہت محنت کی تھی، پورے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم لوگ کوالیفائی ہو گئے. انشاءاللہ اگلے میچ میں بھی ہم لوگ اور زیادہ محنت کریں گے تو اچھا آگے جائیں گے. دیکھیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی اے ماڈل اسکول 2 کی لڑکیاں جنہوں نے اپنا جو ہے پہلا میچ ون کر کے جو ہے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اگلے راؤنڈ ہے اس میں بھی جو ہے جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.